Media friends, I know you're not waiting to hear a long speech from me, so you're not going to get that. But thank you so much for joining us. We've started the year with a project which is really, really close to my heart. It's a film that, as you all know, we've done along with Vishesh Films. I would be very disappointed if you guys have not actually heard the music of Khamoshiyan, because I believe that this is the album of the year. And what's more, we've got a special song, Bhiglu, which has not been seen by anybody, and we're going to show that to you guys first, because you guys are the ones who are going to make a difference. So it's been kept for you guys. We are in the second decade of the 21st century, and in this environment when we keep on hearing about gender equality, we need to understand that you cannot have gender equality unless you free the woman from sexual servitude. This song has demonstrated that in the heart of this film, Khamoshiyan, is the story of a girl who has unleashed the feminine desire. Because it is not the male prerogative to touch the zenith of his desire. In the dawn of the 21st century, when we introduced Mallika Sherawat with Murder and Bipasha Basu with Jism, we kept the woman caged within the parameters of the male desire. But this woman dares to walk out. This is this 21st century, second decade woman, and I'm very proud to say that we have invented very successfully this new persona in this film, Khamoshiyan, with the help of Karan Dara, the bright young director, and this very gifted writer, Vikram. And you will see now our audio-visual communication of a song which is already a hit. It is our title track, Khamoshiyan, which has become a rage, the music of silence. But what you have seen is a tame version of that. Now you'll see the version that we have created especially for you. And this will represent the core of the film. And we have hidden it. As I say, you are what you hide. But on forums like this, we don't hide anything. So we will now show you that song, Khamoshiyan, which has the essence of what Khamoshiyan, the film, is all about. You have 50 Shades of Grey, which has caught the world by a storm and has found respectability on the front pages of the New York Times. These are times where women are not frightened to talk about their sexuality, write about it. And thank God for that. India has changed in the last 10 years more than it has changed in the last 3,000 years. So now the time to present in flesh and blood the woman whom we have created for the celluloid, Sapna Babbi. May I please request Mr. Mahesh Bhatt, Mr. Vikram Bhatt, Karan. May I also request Mr. Vijay Singh to join the cast on stage for a photo opportunity.
May I also request Mr. Sridhar from Sony Music to join them up on stage. Thank you. Yeah, and your song is really mind-blowing. Out of the two, I mean, there was quite a bit of smooch around. Out of the two, who were able to ignite more, what you call it, feminine desire within you? Was it Gurmeet or Ali? Yeah? None of them? Out of the two? Come on. You looked really sexy, bold, and very nice. Thank you. Yeah. Can I have who could ignite and satisfy the sexual, what you call it, feminine desire? Feminine desire. I take back my word. Feminine desire. Well, I'd rather just have both. Is that okay? I don't know. You were doing the scenes. Well, I think both of them together. Very nice. To get together? Spoke like the true woman. We want everything. What is And your everyone. limit? What is your limit of feminine desire as the film, I believe? What is your limits of feminine desire? Take over the world. Huh? Take over the world. And everything. And capture everything. Especially every man. अच्छा गुरमीत, इसके हाँ जी। इन्होंने आपको हथकड़ी पहना दी, अब घर भी तो जाना है। ओह माय गॉड, एक्चुअली इस बारे में मैंने सोचा है बहुत पहले, और अभी ये सब देख के तो मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि रात को जब आवाज़ आएगी चिल्लाने की, मेरे रोने की, तो समझिएगा कि देवीना से मैं मार खा रहा हूँ। I'd like to ask Gurmeet. Yes, sir. What, according to you, is the positive aspect of your character? Come again, sir? Positive aspect of your character. पहले तो अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो हाँ, एक्चुअली खामोशी है तो ना ही करे तो अच्छा है, नहीं तो हाँ सब कुछ बाहर, जो राज है वो बाहर आ जाएंगे, तो नहीं बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है, और खासकर आप सबके सामने तो बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। देखा जाए तो लास्ट ईयर आपका बहुत अच्छा रहा, नए साल से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये लास्ट ईयर वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर अस, एंड पर वो तो अब साल ख़त्म हो गया है, तो नाउ इट्स ऑल अबाउट लुकिंग अहेड, एंड आई बिलीव एज Foxstar Studios आवर लाइनअप दिस ईयर इज़ इवन मोर एक्साइटिंग। पर उसके बारे में बात आपसे मैं ऑफलाइन करूँगा, अभी तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वी आर रियली थ्रिल्ड कि वी आर स्टार्टिंग द ईयर विद अ फिल्म लाइक खामोशियाँ। एज भट्ट साहब वाज सेइंग, दिस इज़ अ फिल्म दैट्स गोइंग टू actually appeal to all the youth. I think this is a film that's going to speak to women, and I think this is a film therefore has a very very wide appeal, and जैसा आप जानते हैं music is already doing, it's rocking on the charts, and अभी तो हमने 2 गाने रिलीज भी नहीं किए हैं, so we are really looking forward to all of that happening. Yes, I can see you. Yeah. आप छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आ रहे हो, आपने डेब्यू किया है फिल्म में, तो किस तरह का ना एक्सपीरियंस रहा भट्ट कैम्प के साथ? और क्या चाहिए, अगर आपको लॉन्च इस बैनर से मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, और हमेशा से सोचा है, और मैं फ़ैन रहा हूँ। सारे सॉन्ग्स जब भी मैं टीवी करता था और सब लोग बोलते थे कि गुरमीत फिल्म करना, तो डेफिनेटली विशेष फिल्म के साथ करना, क्योंकि उसके सारे गाने हिट होते हैं, एंड मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरा जो पहली फिल्म है जो लॉन्च है विशेष फिल्म के साथ रहा। जी बिल्कुल, तो क्या कहेंगे, क्या आप आगे जाके इमरान हाशमी बनेंगे भट्ट कैम्प के लिए? क्यों नहीं है,
ज़रूर मैं बनना चाहूँगा। और अभी तो बहुत सारा टैलेंट बचा है, एक्शन बहुत अच्छा आता है, डांस बहुत अच्छा आता है, तो बहुत कुछ करना है, ये तो बस शुरुआत है। Last year you had a brilliant year with mega releases Bobby Jasus and Sonali Cable. So what are your expectations from this year? Khamoshiyan. Looking forward to start with a bang. And with a lot of lies. That's what we are here. Like Bhatt Saab said, you are what you hide. And we're hiding a lot of stuff. So it's all going to come out on the 30th. I don't say that, they know it. They know it. Yeah, I think everyone knows it. We all know it. There's something we're always hiding. I was wearing this stupid piece. But at the same time, I'm also lying. We're all lying. We're in the lying business right now. Yeah. And it's the way we'll glorify it and show you something very spectacular at the end of this month. So I'm looking forward to it. And planning to start with a bang. You have been consistent with your characters, whether it is Three Idiots or Sonali Cable or Bobby Jasus. Yeah. It is, it's all different characters. So how different this character is? This is very different because this is it's also a story about a writer. You know, he set out to write his book, ends up writing a destiny, and so much more to it. I can't give out. I wish I could. Hey. Mahesh Bhatt, you have the tagline, "Silences have secrets." So what you have to say about that? Ask yourself. Before you after you put your head on your pillow and you fall asleep, in those silences, what do you see? Is that what you reveal to the world? You don't have to ask me, you know the answer. So this film deals with that frequency that we all live with, but we project another person which goes about the day-to-day function, but deep within is a side which we seldom reveal, and if at all we do it in what is called very intimate relationship. So I think that is essentially the frame in which this story has been written by Vikram and directed by Karan. But it's an erotic thriller, and as I said, the 21st century embodiment of female Shakti form is here, that she's here, and she is the one who is going to step out of what is called the desire as defined by the men. Bhige Hot Tere was a song which kind of set the nation ablaze in the dawn of the 21st century, but that was essentially the Imran Hashmi construct. But here it is Bhiglu, it is the woman who says, even I shall pursue carnal gratification on my terms, not as decided by the men. That's essentially what is different about this film. Music launch के जो architect हैं, सीधर जी हमारे साथ लेफ्ट में खड़े हैं, तो इनकी मौजूदगी से वो सवाल की अहमियत कम हो जाती बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जब हमारे पार्टनर साथ में हैं और हमने क्योंकि म्यूज़िक लॉन्च कर दिया है और म्यूज़िक बहुत कामयाब हो चुका है, ये कास्ट को इंट्रोड्यूस करने का एक अवसर था। नहीं तो क्या है, गोल पोस्ट जब अलग हो जाते हैं तो फोकस कहीं पर मीडिया का बढ़ जाता है। एंड दैट इज व्हाई शी हैज बीन कास्ट इन दिस फिल्म फॉर व्हाट शी इज। कैन यू बी कोच्ड माय डियर? No. No. I do whatever I want. Sorry, you'll have to wait till 30th Jan. Thank you. So just now Bhatt Saab said B.K. Hot had created a history at its own time, and today Bhiglu. What are your expectations for this year with the music, starting with Khamosh? How do you look at it? As Bhatt Saab said earlier, the first track Khamoshiyan was released almost 2 weeks ago. And I think in the last 2 weeks, it has actually gone on to set some pretty big records. If you really see it on the streaming services, it's broken pretty much every record that exists. So it's trending very strongly. It's #1 pretty much everywhere. So in 2 weeks, we've kind of really exploded this project from a music perspective, and that too in this month in December, when people listen to normally party songs. These have typically been very ballads and what they call love songs. So in that environment, this has done really well. So we actually believe this will go on to do as big, if not bigger than B.K. Hot Tere is what we expect ourselves. Question is to you, Sapna. I just happened to read in the morning
that you have great equations with Karan rather than the two leading actors. So could you just, and there was also a link up word used in that. So how true is it? अरे हमें पता ही नहीं चला ये कहाँ से? Jealous, huh? You are what you hide. Yes. Well, Karan solves all my problems, and Karan helps me portray Meera, and that's my purpose in Khamoshia. So yes, over these two, yeah. So what have you two to say about it? She's actually disowning you guys and just choosing a director. They're just tools. No, we're part of the whole organ. जैसा कि अभी अभी बात हुई कि नेक्स्ट इमरान हाशमी गुरमीत आपको मिल चुके, तो काफ़ी खुश होंगे आप कि अब अगला इमरान हाशमी आपको मिला है और जो दिल में आया करा सकते हैं आप, राइट? सवाल जरा जोर से पूछिए, कुछ आवाज़ दब गई आपकी। ओके, नेक्स्ट इमरान हाशमी, जैसा कि अभी अभी बात हुई कि गुरमीत हैं, ऐसे माने जा रहे हैं। आपको नेक्स्ट इमरान हाशमी की जरूरत नहीं है, एक इमरान हाशमी काफ़ी है। अच्छा अच्छा, मगर ये गुरमीत है, अपनी पहचान, अपना एक वजूद लेके आया है, और इमरान हाशमी की का जो स्पेस क्रिएट की है वो बहुत ही एक बड़ी स्पेस है। इसमें एक शुरुआत की है, हाँ टेलीविज़न के माध्यम में से इसने अपना एक दुनिया पे, विश्व पे एक अपना एक असर दिखाया है, मगर सिनेमा के क्षेत्र में इन्होंने भी प्रवेश किया है, और यकीनन जिस किस्म की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है उससे हम बहुत खुश हैं। और मुझे यकीन है कि ये जो है आपके बीच में रहेंगे और आपका कैमरा इन्हें चेस करता रहेगा काफ़ी 10-20 सालों तक। बिल्कुल गुरमीत, हमने सुना है, देख भी रहे हैं कि काफ़ी फीमेल अट्रैक्शन आपकी तरफ होते जा रहे हैं, तो आप हैप्पी हैं? यही तो चाहिए। मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि जब भी गाड़ी में भी बैठो तो बस ये देखता रहता हूँ कि लड़कियों ने पहचाना कि नहीं। और बस ये है कि बस देवीना खुश होते रहे, ये मैं चाहता हूँ हमेशा। वो खुश है या नहीं? हाँ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुश है। आप देख रहे हैं मैं फंबल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। ओके, सपना, 2 हीरो हैं, आप एक अकेली हीरोइन है इस फिल्म में, तो कंफर्टेबल हैं आप? क्या मैं आपको अनकंफर्टेबल लग रही हूँ? ऑन द सेट एक्टिंग, रोमांस की बात कर रहा हूँ मैं, सीन्स। Do I look uncomfortable to you? Yes. You like the word smooch, no? Smooch, 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 smooch. Smooch, 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 smooch. Happy? Okay, सपना आप happy? अग्रेसिव क्यों हो रही है? हम तो सिर्फ एक्टिंग की भी बात कर रहे हैं, रोमांस की भी बात कर रहे हैं, जो हमें स्क्रीन पे दिखा तो भी आपने बोला नहीं, you just said smooch. मैंने एक्टिंग भी बोला, मैंने नहीं, रोमांस बोला, मैंने no, एक्टिंग बोला। You said smooch. Don't say smooch. Okay, now this smooch thing is boring. अच्छा, we have किसी ने भी कहा था कि हमारे म्यूजिकल टीम का कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं श्रीधर के होते हुए, तो बड़ी खुशी से मैं कहता हूं अंकित यहाँ पर हमारे साथ है। अंकित आइए जरा। अब अंकित आके ये जो इनको कमी का एक एहसास हो रहा था वो पूरी कर दे, तो ऊपर आइए और गाना गा के सदा इन्हें, नहीं बिल्कुल गा के। Hi, I'm good, yeah. Bye. How are you? इस फिल्म में जो गाना है मेरा, alright, आज ही हुआ है वो गाना. It's a female song, but मुझे शायद मैं उसके लिरिक्स भूल सकता हूँ और मुझे पूरा गाना याद नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के सामने गाने की. हाँ, साथ में गाते हैं तो थोड़ा मुझे सपना मिल जाए. शर्म हटा दे
जो शब गिरा दे रातों में डारता दारा रे दारा दारा रा मैं उड़ता ना 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 भीग लूं आज मैं तेरी बारिश में भीग लूं आज मैं तेरी बारिश में भीग लूं। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी अच्छे से लिरिक्स याद नहीं है, बट थैंक यू। थैंक यू। ऑसम। सब हम लोग हैरान हो गए, हम देख ही रहे थे। We're also fans at the same time. Thank you, members of the media, for those questions and also being here. Could I request the members of the print media photo opportunity? हिडन हुई है कि राइटर की स्टोरी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अभी बोला जा रहा था कि हाइड नहीं हो रही चीजें, अभी अली ने बोला कि एक राइटर की स्टोरी है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि राइटर की स्टोरी है ये? और खामोशियां एक एरोटिक जी सुपरनैचुरल थ्रिलर है जी। हमने 21वीं सदी की सुरहा ने राज एक फिल्म बनाई थी जी जी, जिसमें एक ट्रायंगुलर ड्रामा था। यस सर। इसमें भी ट्रायंगुलर ड्रामा है, मगर ये 21वीं सदी का दूसरा डिकेड है। इसमें जो महिला जो हमारी फिल्म की जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसकी जो सोच, उसके अंदर का की जो मांग जो है बिल्कुल विपरीत है उस महिला से जिसने आपके जहन पर रास के वक्त असर किया था। ये महिला जो है 21वीं सदी के दूसरे डिकेड की महिला जो जेंडर इक्वालिटी की मांग कर रही है, वो भी कहती है कि जो सेक्सुअल लिबर्टी जो मुझे चाहिए जी, वो मैं अपने शर्तों पे हासिल करूंगी, आपके मर्दों के डेफिनेशन के दायरे में मैं नहीं रहूंगी जी, क्योंकि बहुत आप लोग ने हमें बांध के रखा है। अब हम अपने शर्तों पे अपनी सेक्सुअलिटी को रीइंटरप्रेट करेंगे। ये एक ऐसी महिला है जो अपनी आइडेंटिटी की तलाश में निकलती है और कैसे दो मर्द उसे टकराते हैं, वो दास्तान है। मगर वो उसका जो एक ईडियम है वो एक सुपरनैचुरल ईडियम है और एक थ्रिलर का ईडियम। सर कहा जाए कि इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल है, क्योंकि सेक्सुअल रियलिटी जो है उससे समाज आज की तारीख में जूझने को तैयार है। इसकी असलियत को वो से मुंह नहीं फेरता है। आज खास करके डिजिटल टेक्नोलॉजी की बाद में हमारे जो एक नौजवान पीढ़ी की सोच जो है सेक्सुअल इश्यूज को लेकर काफ़ी बदली है। 3000 साल में जो परिवर्तन नहीं आया था हमारे मुल्क में, पिछले 10 साल में आया है। और ये जिसको आप बोल्ड कहते हैं वो हमारी नौजवान पीढ़ी बहुत फिल्म की एक्ट्रेस भी काफी नए लोगों को ढूंढ के लाना, उन्हें तलाशना, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाना, ये हमारा एक पुराना एक कोर आइडियोलॉजी रही हमारी। और हमने लगातार इंडस्ट्री में नए लोगों को अवसर दिया है और इसमें भी मुझे यकीन है कि गुरमीत और सपना जो है आने वाले कल में
हमारे एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आपको अक्सर पहले रो में बैठे हुए नजर आएंगे। सर 2014 बॉलीवुड के लिए अच्छा रहा और ये साल भी कई फिल्में आ रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले बजट से फिल्म इंडस्ट्री के लिए? देखिए हर साल उम्मीदों का की जो एक्सपेक्टेशन की जो एक लेवल होती है बहुत हाई होती है, मगर वो तो आखिरकार दर्शक ही बताता है हमें कि वो हमें कितना गले लगाता है, हमसे किस किस्म का व्यवहार करता है। कौन सी बात always seen that whichever movie which has been made under Vishesh production is always a hit. So was Tarak and Naam when you made it with Sanjay Dutt. What I want to say something related to Sanjay is now he looks a much fitter person than he was previously. So what I want to say on आपने सवाल पूछिए, मैं और दे देता हूँ। संजय मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा हम सफर रहा है, हमने साथ जिंदगी के बहुत हसीन लम्हे गुजारे हैं, हमने साथ बहुत बड़ी दोस्ती है और हर मोड़ पर मैं उसके साथ था। आज की तारीख में जब वो जेल के सलाखों के पीछे बंद है, जब वो आता है तब भी हमसे उसी तरह मिलते हैं जैसे वो पहले मिलते थे। और ये जो खौफनाक एक मंजर है उसकी ज़िंदगी का, वो बहुत जल्द ख़त्म होगा और एक नया सूरज निकलेगा उसकी ज़िंदगी में और वापस वो वहीं से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे जहाँ से। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, जब पहली बार मैंने पिक्चर देखी, देखिए जब कोई भी लेखक कहानी लिखता है तो अपने जहन में अपने माइंड में कुछ सोचता है कि कैसा होगा वैसा होगा। जब पर्दे पे वो बात नहीं आती तो वो कभी निराश हो जाता है, तो पर्दे पे बात आ जाती है तो खुश हो जाता है। लेकिन अगर पर्दे पे जो चाहा है उससे बेहतर हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। अब करण दारा जो नए डायरेक्टर हैं पिक्चर को, वो बहुत ही उम्दा, बहुत ही अभी अली ने बोला कि ये एक राइटर के डेस्टिनेशन की कहानी है जी। तो क्या जब आप लिख रहे थे कहानी पे तो क्या 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 बातें अपने माइंड में आती थी? एक अधूरे इंसान की कहानी है। एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ पूरा नहीं किया, तो ऐसा आदमी है जिसने कोई रिश्ता बरकरार नहीं रखा, काम भी किया तो आधा अधूरा सा, किसी से प्यार भी किया तो आधा अधूरा सा प्यार, तो मतलब कुछ आधा अधूरा किस्म का आदमी है। और कैसे उसे ज़िंदगी में समझ में आता है कि ज़िंदगी उसी की है जो डट के एक काम पूरा करता है। जो आदमी सब काम आधा अधूरा करता है वो आधा अधूरा सा ही रह जाता है। सर आपने बहुत सी हॉरर फिल्म लिखी, तो इसमें क्या हमको हॉरर देखने को मिलेगा या कुछ ऐसा सस्पेंस? देखिए सच बात तो ये है कि ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना महज हॉरर फिल्म नहीं है जी। जैसे राज 1 बनी थी, इसमें क्या कहते हैं रोमांस भी है, मिस्ट्रीज है और कहानी में उतार चढ़ाव बहुत है। जब लगता है कि कुछ इस तरफ जा रही है तो उस तरफ चली जाती है, तो मिस्ट्री भी है, हॉरर भी है, सस्पेंस तो बहुत ज़्यादा है पिक्चर में। तो अलग अलग किस्म के मोड है पिक्चर में। आने वाला हमारा प्रोजेक्ट है मिस्टर एक्स रिलीज़ होगा 17 अप्रैल को। खैर ये तो मैंने सिर्फ लिखा है, वो मैंने डायरेक्ट किया है, लेकिन वो बात हम जब मिस्टर एक्स की प्रमोशन करेंगे तब करेंगे। थैंक यू सर। ये एक अलग तरीके की फिल्म है, जब आप डायरेक्ट कर रहे थे विक्रम भट्ट साहब ने और महेश भट्ट साहब ने अप्रोच किया था, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? I think I was gifted enough to have gotten this opportunity. मैं भट्ट साहब के साथ भट्ट साहब को असिस्ट कर रहा था जब वो हमारी अधूरी कहानी लिख रहे थे, और तब ये पिक्चर का मौका मिला मुझे। मैं एक्चुअली हमारी अधूरी कहानी में एसोसिएट होने वाला था और मैंने किया नहीं, क्योंकि जब काम कर रहे थे बहुत प्रेशर था। भट्ट साहब थे सेट पर, विक्रम सर साथ थे, गाइडेंस मिली, एक पॉलिश प्रोडक्ट मिला वो लोग की वजह से। वो लोग के बिना इतना पॉलिश प्रोडक्ट नहीं मिलता था। मेरे आइडियाज़ थे, मेरा यूथ, my sensibilities of today's times came in, and it was brilliant. And this project is a collaboration of all of us, and I would love for you guys to see what we're trying to embark on. जो journey हम लोग शुरू करने वाले हैं इस पिक्चर के साथ in the start of the year. I think it will open many more grounds in the future for future films coming. Because like Bhatt Sahab said in this event, it is about unleashing the woman's most secret and darkest desires.
कुछ लिंकअप की खबरें आ रही हैं कि हाँ। पिक्चर की हीरोइन के साथ कुछ ऐसा तो क्या है इसमें सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। आई एम नॉट, इट्स रैंडम रूमर्स। आई माई सेल्फ, बहुत लोग ने मुझे आज सुबह फ़ोन किया और पूछ लिया, एंड माई फ्रेंड्स इज सेइंग व्हाट इज़ दिस, क्योंकि उन लोगों को पता है, रोज़ मिलते हैं तो उन लोगों को पता है मेरा वेयर अबाउट्स और मैं क्या करता हूँ, तो दीज आर ऑल फॉल्स रूमर्स। कोई प्रेशर नहीं, नो प्रेशर एट ऑल। What a role demands you to do, you do what your role demands you to do. How much you like your role? I love my role. I got to do a lot of different things. मीरा के काफ़ी different shades हैं और बहुत मज़ा आया. It was a lot of fun. I wasn't just pretty, I wasn't just, happy. I got a lot to do. It was great. भट्ट साहब ने बोला कि ये प्रोटेस्ट की एक कहानी है, जैसे महिलाओं की प्रोटेस्ट कहानी, तो आपको जब सीन मिला, पिक्चर मिली, तो कैसे आपने उसको पिक्चराइज किया अलग तरीके से? I did it in the best way I could. In terms of protest, what do you mean? Like what? जैसे महिलाओं की सेंसुअलिटी की अलग तरीके की डिफिनेशन दी गई है, जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि एक लेडी I think पहली बार each girl, especially in the postmodern era, has her own unique sensuality and unique sexuality, and it's constantly building. As the times are building in this globalized world, it's constantly building, and it's gonna keep changing. It's not gonna be the same as it was before. And I guess we'll have to see what it is now in the film. Thank you so much. Thank you. Thank you. That's it. एक लास्ट क्वेश्चन, कोई फिल्म का एक डायलॉग बस। थैंक यू। I love horror flicks, yeah, and this is more of a psychological horror kind of a thing. So I'm more excited about this one, and there's Ali in it, so I'm even more excited. He's a very funny person. What he's doing in the horror flick, I really want to check it out. बहुत खौफनाक टाइप आ रहे हैं यार, अलोन और फिर खामोशियाँ. I'm expecting a very nice, like, literally spine-chilling thriller inside. सबसे पहला कमेंट और सबसे अच्छा है सलमान खान की तरफ से, ऑफ कोर्स, बिकॉज ही लव द फिल्म एंड he was very happy that it turned out the way it turned out. So he was like really happy and he was very vocal about it on social platform. अरे अगले 10 साल तक कोई भी कॉप प्ले करेगा चश्मा पहनकर, उनको सलमान खान ही दिखेगा. वर्ल्ड कप तो वापस नहीं भेजेंगे भैया, फॉर श्योर, इट्स आवर्स. इन अवार्ड्स मैं बोलूँगा इफ़ आई डोंट बिलीव दिल से मिलता नहीं है तो बोलते हैं, बट आई थिंक रिवॉर्ड इज़ मच बिगर देन एन अवार्ड. And appreciation from the people is much more important. He's fab in everything he does, yeah. I've not seen Happy New Year, so I really can't comment. But without watching it, I can say that he's definitely fab. Matlab, who am I to comment on his thing? Great, thank you. मैं ये कहूँगा कि खामोशियाँ बहुत आवाज़ करने वाली है इंशाल्लाह ताला. क्या है ना, जब नए नए हीरो चलेंगे तभी तो जनता को ये फिल्म देखनी चाहिए. और भट्ट साहब का हमेशा से रहा है कि नए स्टार्स को लॉन्च करके एक नए सब्जेक्ट के साथ, नई फिल्म के साथ, थोड़ा पैशन, थोड़ा रोमांस. मुझे प्रोमो भी बहुत अच्छा लगा और दोनों मेरे भाई हैं और आई विश देम ऑल द लक. और मैं 100% चाहता हूँ कि खामोशियाँ आवाज़ करें. नहीं, सेंटी नहीं लग रहा. मैं ये कहूँगा कि करण एक अलग चीज़ है और गुरमीत एक अलग चीज़ है. और आई पर्सनली लाइक गुरमीत, तो आई थिंक खामोशियाँ आवाज़ करेगी. अलोन थोड़ा वो अलोन ही रह गया. अरे यार, मैं तो बड़े पर्दों पे बहुत आया, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है वो तो. देखो यार, अब ये है कि ये अल्लाह ताला के हाथ में है और भट्ट साहब के हाथ में है. यारब तो वैसी ही फिल्म थी, आपने देखी भी. लकीर का फ़कीर भी वैसी थी. टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये भी लिखा कि एजाज खान स्टील द शो विद इफेक्टिव एंड पावरफुल परफॉर्मेंस. तो वो रिव्यू था, वो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से पूछिए. बाकी रही बात तो अल्लाह के हाथ में है. और अभी मैं आ रहा हूँ, अभी मैं कहीं नहीं गया हूँ, अभी भी ज़िंदा हूँ और ज़िंदा नज़र आ रहा हूँ. वो और बात है कि बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया. अल्लाह हाफिज़. हमने एक्चुअली एक हफ्ते पहले फिल्म देखी है और तब से 1 महीने से प्रमोशन में थे. भट्ट साहब कहते थे, उन्होंने कहा था, भट्ट साहब ने कहा कि फिल्म देख ले तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा. तो फिल्म देखने के बाद अच्छी लगी फिल्म. अभी यही दर्शकों को देखना है कि दर्शक कितना एक्साइट होते हैं और आई एम श्योर कि उनको भी पसंद आएगी. यार
मैं एक्चुअली अपने आप को बहुत कम देखता हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एग्ज़ाम चल रहा है, ऑडिशन चल रहा है। तो ऐसे ही बहुत दोस्तों ने और देबीना ने पकड़ के दिखाया। ठीक है, अब इन खुद के मुँह से मुझे लगता है कि बोलना ठीक नहीं रहेगा। बस यही कहूँगा कि जनता देखे और उनको कैसी लगेगी वो ज़्यादा मायने हैं। हम लोग जयपुर जा रहे थे, तभी मैं अजमेर शरीफ को बहुत मानता हूँ, वहाँ दरगाह को। तो अचानक दिमाग में आया कि जयपुर है तो 2 घंटे की दूरी पे ही अजमेर शरीफ है। तो मैं, अली और हमारे जो डायरेक्टर है करण दारा, हम लोगों ने प्लान किया और हम लोग रातों रात अजमेर शरीफ गए और वहाँ पे आशीर्वाद लेके आए हैं। और कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। हाँ, अच्छा लगता है। अवार्ड्स अगर मिलते हैं तो एज एन एक्टर आपको मज़ा आता है। अगर आप जब नॉमिनेट होते हो तब भी अच्छा लगता है। तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि अवार्ड्स एक बूस्ट देता है, एक किक आपको देता है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये अवार्ड लेना है। आप परफॉर्म उस तरीके से करते हो, आप एक्ट उस तरीके से करते हो। देखिए, अभी कंपटीशन के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। अभी तो बस दिमाग में यही है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है कल, बस यही दिमाग में आ रहा है। हाँ, अब देखिए, मैं बहुत फंबल कर रहा हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, लेकिन ठीक है, देखते हैं। और थैंक यू। अच्छी सुपरहिट होनी चाहिए। हमने बहुत अच्छे से काम किया है और काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं आप लोग को दिखाने के लिए कि क्या है, एक ग्लिम्स क्या है इस फिल्म की। तो कल ही पता चलेगा आई थिंक ऑडियंसेस को कैसा लगता है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। Excitement, we're very excited. Not nervous क्योंकि हम लोग खर्च हो चुके हैं पिछले 25 दिनों से ऐसे we've been promoting the film and excited. We hope you all enjoy it. We enjoyed making it, so we hope you all really enjoy it. Thank you. Is it solder? Yeah. इसीलिए वही तो उसका इफेक्ट अच्छा आता है ना। कुछ he's become the baby after this, and I think we feel like parents now. Yeah. Bhatt Saab is like our child. सही सुना है। इसके आगे नहीं बता पाएंगे अभी। खामोशियाँ के बाद बताएंगे। हाँ। नहीं, अभी तो शायद सीक्वल हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है। We'll find out tomorrow. नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। I think my heart goes out to both of them are great friends, Ayushman और Pallavi. So all the flying colors. Yay! 30th Jan. उन्होंने हमें डांटा बहुत, स्कोल्ड बहुत किया शुरू में, बट उसके बाद हम सब ने रियलाइज़ किया कि भट्ट साहब हमें बस पुश करने की कोशिश कर रहे थे, एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट अस टू डू बेटर, एंड वी लव हिम फॉर दैट नाउ। वो जो है ना, वो कुरेद देते हैं एक्चुअली, दैट्स द प्रॉब्लम। वो अंदर झांक के ऐसे ही पुल आउट वन इंटेस्टाइन एंड से ये एक्टिंग है। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन, एंड आई थिंक वी हैव आल्सो लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। मैं थोड़ा मुफट हो गया हूँ उनके साथ रहने के बाद। वो थोड़ा ड्रॉबैक है हमारी इंडस्ट्री में। तो हाँ, लेकिन काफ़ी न्यूज़ बनेगी शायद आने वाले कल में। और अब हम भट्ट साहब को डांटते हैं। नहीं, आई थिंक इट वाज जस्ट बैड टाइमिंग। बॉबी जासूस बहुत प्यारी फिल्म है, वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, हमेशा रहेगी। एंड इट्स बैड आई थिंक, क्योंकि आजकल शायद जो फिल्म वो एक क्रॉस कर जाए मार्क, उसी की चर्चा होती है। कहीं ना कहीं जो अच्छी फिल्में वो खो जाती हैं कभी कभी, लेकिन क्योंकि हम लोग की वी हैड ग्रेट 2 years, लास्ट 2-3 years has been very good for Indian cinema. हमारी बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं। I think this year is actually going to be even better. Oh, even better. Yeah. So yeah, Bobby Jasus and many others, are great films. You can say that मैं ऐसी स्टेज पे हूँ नहीं जहाँ पे मैं ऐसा कमेंट मार सकता हूँ। अवार्ड्स इज़ अ नाइस बोनस, एक मोटिवेशन मिलता है एक्टर्स को, बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। या तो आप आमिर खान बन जाते हो या फिर anyway. I think it's a celebration, right? It's a celebration. Awards are like celebration. We hosted Screen Awards, one tiny miserable chunk, लेकिन मज़ा आया। We had fun. We'll do it again. Thank you so much. Please watch and be generous. Yeah, love you. इधर वो फिलहाल तो मुझे वो पता नहीं 100 करोड़ क्लब में मैं घुसूंगा कि नहीं। फिलहाल तो इतना ही है कि मैं ये पिक्चर
रिलीज़ हो जाए, ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाए और जो मेरी मैसेज है जो मैं इस पिक्चर में बोलना चाहता हूँ वो लोग सुनो। कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया ये पिक्चर में, मैं बहुत खुश हूँ। अली, सपना और गुरमीत ने बहुत बेहतरीन काम किया है इस पिक्चर में एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गाइज रियलाइज दैट दे आर टॉप नॉच इन देयर गेम। फिलहाल तो मुझे पता नहीं बट डेफिनेटली आई बी वर्किंग विद द भट्ट कैंप ओनली। आई वर्कड विद देम सिंस द टाइम आई स्टार्टेड। जब से मैं असिस्टेंट रहा हूँ मैं लोगों के साथ काम करता आया हूँ और आगे भी काम करता जाऊँगा। बहुत कुछ सीखने मिला। मैं जैसे बहुत सारी इंटरव्यूज में बोला, भट्ट साहब एक मेरे लिए एक आईने हैं। वो मुझे दिखाते हैं मेरे खुद की इनएडिक्वेसीज और मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं और थ्रू आउट द स्केड्यूल मेरे को बहुत सारी डायरेक्शन एक डायरेक्टर को उसने दी है। हाँ जी, ऑफकोर्स एक प्रेशर तो था, हमेशा सेट पर रहते थे, विक्रम सर भी सेट पर रहते थे, दोनों से मदद मिलती रहती थी। ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन रहती है भट्ट साहब की, अगर किसी के ऊपर इन्वेस्ट करें तो किसी हद तक जो एक्सपेक्टेशन वो चाहते हैं उस तक कहाँ ना कहूँ मैं किधर पहुँच जाऊँ। ये एक कंटेम्प्रेरी हॉरर है, हॉरर भी नहीं बोल सकता, सुपर नेचुरल थ्रिलर है। इट डैबल्स विद साइकोलॉजिकल थ्रिलर एलिमेंट ऑफ इट। इन एसेंशियली ये कहानी जो है एक रिश्तों की कहानी है। So it's way deeper than most of the other films that we've attempted to do in this genre, and I think it's a step forward, and it's a film of today. फिलहाल मैंने ये सोचा भी नहीं है अभी तक। As of now, I'm not even thought of any of that. I'm just hoping that a good story comes my way, and I'll be willing to work as long as the story is good. Thank you. बहुत expectations हैं। एक तो गुरमीत टेलीविज़न से है, अली बहुत अच्छा दोस्त है, सपना हैज़ डन फैंटास्टिकली वेल इन 24 एंड आई रियली लव ऑल ऑफ देम and I'm here basically to support all of them because I'm extremely fond of them as performers. And Khamoshiyan, yes, with the banner that it comes with, I'm very excited because भट्ट कैंप हमेशा कुछ अच्छा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग लेके आता है and the promos look fantastic. उम्मीदें हैं and I'm sure all three of them have done a fantastic job. नहीं, I don't think that's the reason. I think ये films thrillers हैं, अलोन सो टू से जिस जॉनर को बिलोंग करता है, जिस जॉनर को आपके प्रोमोज आपने देखे होंगे बिलोंग करते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ सेंटी नेम बट इट्स अ थ्रिलिंग नेम। खामोशियाँ, आई थिंक इट हैज़ अ वेरी हॉन्टिंग फील एंड अ हॉन्टिंग वाइब टू इट। द कैंप दैट इट कम्स फ्रॉम, दे आर माइस्ट्रोज व्हेन इट कम्स टू दिस जॉनर। सो आई थिंक ऐप्ट नाम है और नाम से ज़्यादा आई थिंक हम लोग अगर फिल्म देखकर उसके बाद उसकी बात करें तो जस्टिफाई क्यों करता है नाम, ये हम सबको समझ आ जाएगा। जी, मैं उनका वो बोल रहे हैं उनकी बात सुनने के बाद मैं सेंट्रल हुक ही दूँगी। So I'm actually just waiting for my song in Welcome Back, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मई में फिल्म रिलीज़ है और ऑडियो लॉन्च के बाद हम सब गाना देख पाएंगे। मैंने भी देखा नहीं है अभी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट सॉन्ग। देयर इज़ लीना यादव्स पास्ट, जो कि अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए रिलीज़ की जाएगी। एंड आई थिंक जैन का महीना मैं अभी बहुत सारी नरेशंस ले रही हूँ और बहुत जल्द आप सबको बता दूंगी कि मेरा अगला प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। आई डेफिनेटली वुड वांट टू साइन द राइट फिल्म एंड मेक द राइट चॉइस एज मच एज इट इज़ इन माय हैंड्स। आई वांट टू विश गुरमीत, सपना एंड अली all the very best. I think all three are fantastic performers and they will do well. I'm looking forward to the film. I'm getting later. Bye. It was great. I liked it. Ali Fazal was great as an actor. Gurmeet and Sapna Pabhi, I guess she is. They were okay, quite okay. Out of 5, how many stars? 3. Thank you so much. Acting कैसी लगी Ali Fazal? Ali Fazal was great. Yeah. Songs are good. Arijit Singh, yeah, great. personally कौन सा song सबसे अच्छा है? Khamoshiyan. और कैसे देख रहे हैं कि Out of 5, how many stars? 2.5. Thank you so much. It's a very, I don't know what to say about it. Picture? नहीं, फिल्म समझ में नहीं आई what genre it is, what it is.
whether it's a erotic romantic film, it could have, when it started I did feel okay, it's a man being lured into a woman's trap and something big is going to happen. But nothing has actually happened. Suddenly spirits start coming out from where, when, you don't know. At one time I felt it's something like Alfred Hitchcock's Psycho. A dead man being kept alive and all that. But nothing after that. Nothing. But performance-wise, sir? Performance-wise, Ali Fazal is good. Gurmeet is good. The girl also is not bad. The girl also, she's got a face which will go very well with this type of pictures, you know. Certain mystery about her. But somewhere in this picture I found that people in the film are less. The characters, like the fear you're running from home, there is no one there. 1, 2, 3 people around in wilderness somewhere. So what is everyone hiding from? What is everyone searching for? What is everyone afraid of? There has to be some part of civilization. The only thing that available apart from the mansion is a cemetery. So there's a man over there also, you don't know who he is. Ultimately they say that he's also a spirit. Now, I couldn't know. He was a normal man like you and me. But ultimately he says, I'm a spirit. Were you overall disappointed? Not disappointed, nor did I expect. I expected a romantic sort of film, you know. A very hard romantic film. Where it's difficult for a man to control himself and how he gets lured into something. It did start off on that way, but it was didn't go that way. But ultimately, you see the whole plot, they are not very sure what they are making. That's the main thing. When you start off the picture, it's like a broken down man who's got nothing. मैं अधूरा हूँ, and the dialogues are not very clear. मैं अधूरा हूँ. What is the meaning of अधूरा? मैं अपने आप को पूरा करना चाहता हूँ. मेरे टुकड़े बिखरे हुए हैं. मैं टुकड़ों को जमा करना चाहता हूँ. It's all nonsense here. You don't speak like that in real life. Right. And if I tell you something, the girl also is replying in the same way. So the whole writing also is, you know, I don't know what are they trying to say to the people. What are they trying to say? It's so clear to tell you what I want to say and you understand me. Now if I keep on telling you that I don't know what Khamoshi was and it was somewhere a part of me and I came out of it, you'll suddenly say this man is mad. What is he telling me? So that is the writing of the picture. So you can easily understand what the film is about. It's absolutely, thank you. It's absolutely nothing. Khamoshi is a very nice movie. It's just that the second half is slightly unreal, but first half is really good. And Gurmeet Chaudhary, जिनकी ये पहली movie है, वो काफ़ी promising है. He's so confident. Doesn't seem like it's his first movie. And Ali Fazal का भी काफ़ी अच्छा role. He is an intense actor, so उन्होंने भी अपना role बखूबी निभाया. And the best part is Sapna Pabba. I think Sapna Pabba की performance बहुत ही अच्छी है. ग्लैमर कोशेंट लाई है मूवी में, बहुत ही गॉर्जियस और ग्लैमरस हैं और सपना की वजह से यू नो आई थिंक इट्स वर्थ वॉचिंग एंड इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर. तो मिस्ट्री जब अनरेवल होती है आई थिंक थोड़ा सा सेकेंड हाफ में क्लाइमेक्स के ऊपर ध्यान दिया जाता. फर्स्ट हाफ इज़ वेरी इंग्रॉसिंग एंड वेरी नाइस. सॉन्ग्स और म्यूज़िक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है. इफ़ यू वांट टू वॉच इट, एक सॉन्ग जो खामोश है टाइटल सॉन्ग है वो ऑलरेडी हिट है. द म्यूज़िक एंड द लिरिक्स आर वेरी पोएटिक एंड बहुत ही अच्छा रिदम है. So but the only thing is that the movie initially starts with a very slow pace, and second half में जितना लगा था कि it will go to another level, it doesn't go to that level. So climax is disappointing, but music, performances and all are very good. 3 stars.